Hello guys, yes. Today we will discuss next topic of chapter 5, multiple alleles. Okay, normally phenotypic expression is controlled by a pair of alleles, two alleles. Okay, like normally phenotypic expression is controlled by a pair of alleles. Okay, for example, tall and dwarf. Okay, red and white color. Okay, these are phenotypic expression that is controlled by two alleles. Like tall is controlled by capital T, dwarf is controlled by small t. ठीक है, यानी एक मतलब उसके अंदर क्या है, टू एलील्स है. एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में क्या है, टू एलील्स है. दिस इज ऑल्सो फॉर टॉल, दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ एलील्स फॉर टॉल. ओके, बट समटाइम 3 or more alleles are responsible for a single character. अब यहाँ पे तो हमने क्या देखा, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर एक सिंगल हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर हाइट का हमने कैरेक्टर लिया, सिंगल कैरेक्टर हमारा हाइट है और इसकी टू फॉर्म्स है, टॉल और ड्वार्फ. ठीक है, यानी पेयर ऑफ एलील्स से ये कंट्रोलर है. एक कैरेक्टर के क्या है, टू फॉर्म्स है. लेकिन बट समटाइम 3 or more alleles are responsible for a single character. It is called multiple alleles. Okay, so good example for multiple allele is ABO blood group in human being. It is a good example of codominance also. So ABO blood group is a good example of multiple alleles and codominance. ABO blood group are controlled by the gene I. The gene I contain 3 alleles. Okay, this ABO blood group जो है humans के अंदर ABO blood group जो है, this is controlled by gene I. इसके लिए gene क्या है, I है. Okay, and this I gene contain 3 alleles. IA, IB and I. This I contain 3 alleles, IA, IB and I. Okay, IA and IB are dominant and I is recessive. These two are dominant and I is recessive. Human beings are diploid organism, so each person has any 2 alleles. Okay, out of these 3 I gene, each person has 2 alleles. Okay, जैसे इनमें से कोई भी 2 हो सकती है. When IA and I is present, that time only IA express, क्योंकि I क्या है, रिसेसिव है. When IB and I are present, that time IB is expressed. When IA and IB are present together, okay, that time they express both. They express both because of codominance. दोनों ही डोमिनेंट हैं. डोमिनेंस में हमने देखा था ना तो कोई ब्लेंडिंग होता है और ना ही कोई डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर कोई डोमिनेंट शो नहीं करता. दोनों ही कैरेक्टर क्या होते हैं, शो होती है. तो यहाँ पर भी क्या है, IA और IB दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंट. सो ABO blood group is a good example of multiple allele and codominance. ओके, अब हम इस टेबल से इसको समझेंगे कि कैसे मतलब पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग्स में कैसे उनका ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड होता है या उनमें क्या जीनोटाइप होते हैं. ओके, alleles from parent first, alleles from parent second, genotype of offspring, blood type of offspring. Suppose alleles from one parent is IA. एक पेरेंट का एलील क्या है, आई है, ए है. दूसरे पेरेंट का भी एलील क्या है, आई ए है. जब दोनों में फ्यूजन होगा, क्रॉस होगा, तब जो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बनेगा वो भी दोनों एलील्स उसमें जाएंगे, आई ए और आई ए. तो ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा वो भी क्या होगा, IA
IA, और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A। When IA and IB are present, एक पेरेंट का एलील क्या है? IA है, दूसरे पेरेंट का एलील क्या है? IB है। ओके, ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों ही जाएंगे, उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA, IB। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? अभी दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही अपने मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? AB। अब मदर का तो ब्लड ग्रुप क्या है? IA। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? IB। इनसे जो गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर एक ही एलील होगा, IA और IB। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, F1 जनरेशन होगी, उसका जीनोटाइप क्या हो गया? IA, IB। ओके, बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। नेक्स्ट, when a parent has IA allele and second parent has IA allele, that time offspring get IA and I. Genotype of offspring is IA and I. This I is recessive and this is dominant. So dominant show their character. So the blood group of offspring is A. That time the blood group of offspring is A. In this way, if a person has IB and second parent has IE, ठीक है, इससे B भी हो जाएगा। IB और IE है तो AB दोनों जाएंगे एक साथ और उनका ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB। एक पेरेंट का B है, दूसरे पेरेंट का भी B है, दोनों ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, जीनोटाइप उसका IB होगा और उनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी क्या हो जाएगा? B। अगर IB एक पेरेंट का IB है, दूसरे पेरेंट का क्या है? I है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा? IB और I यहाँ पर रिसेसिव है तो ओनली क्या होगा? B एक्सप्रेस होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B। अब एक पेरेंट का क्या है? I है, दूसरे पेरेंट का भी क्या है? I है। अब ऑफस्प्रिंग में दोनों I जाएंगे, ठीक है। अब ये रिसेसिव है यानी अपना कैरेक्टर शो नहीं करते, तो जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो क्या होगा? O। ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। ना तो A है ना ही B है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। क्लियर? सो दिस इज द ABO ब्लड ग्रुप। So this is a good example of multiple allele and codominance, ठीक है। मल्टीपल एलील क्योंकि इसमें क्या ABO ब्लड ग्रुप जो है वो मतलब कंट्रोल हो रहा है 3 एलील से, जिनकी एक जीन की क्या है 3 फॉर्म से, तो ये क्या होंगे? मल्टीपल एलील्स होंगे। ओके, और इसके अंदर क्या है? IU और IB दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रोजेनी के अंदर क्या है? वो अपने आप को दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। सो दिस इज अ कोडोमिनेंस। सो ABO ब्लड ग्रुप इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील एंड कोडोमिनेंस। यस, I hope you understand this. Now we discuss next topic. Next topic is inheritance of 2 genes. Okay, that means when cross were made between 2 characters, it is also known as dihybrid cross. Okay, for this Mendel chose 2 characters of pea plant, seed shape and seed color. The 2 contrasting forms of seed shape is round and wrinkle. The contrasting 2 forms of seed color is yellow and green. Round shape was dominant over wrinkle. In this way, yellow color was dominant over green. Okay. Round is represented by capital R. Wrinkle shape is represented by smaller. Yellow is represented by capital Y, and green is represented by small y. Okay, Mendel crossed pea plant that
differ in two characters. So one plant has seeds with round shape and yellow color. एक प्लांट उसने कैसा लिया जिसके सीड्स क्या है, राउंड भी है और उनका कलर कैसा है, येलो है. एंड अदर प्लांट हैज सीड्स विथ wrinkle shape and green color. So the parents from this, the genotype of parents, this is the genotype of parents. One is round and yellow. So capital R, capital Y, capital Y. This is the genotype of parents. It is also genotype of parent. Wrinkle के लिए क्या आ गया, small r. Grain के लिए क्या आया, small y. तो ये पेरेंट्स का जीनोटाइप हो गया. अब ये होमोजाइगस है तो इनसे एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. अब इनसे जो F1 जनरेशन होगी, द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन इज कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. These all are round and yellow seeds. Okay, he obtained all seeds are round and yellow. In F1 generation, that means only dominant character is expressed. Only dominant character expressed. After that, Mendel self-pollinated the F1 plants. Okay. After that, Mendel self-pollinated the F1 generation plants. That time he get 4 types of gametes from this. देखो ये कैपिटल R, कैपिटल Y मिलकर क्या बनाएंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y. कैपिटल R, Y, स्मॉल y के साथ भी मिलकर क्या बनाएगा, गैमेट. स्मॉल r, कैपिटल Y बन सकता है, स्मॉल r, स्मॉल y. In this way, 4 types of gametes are formed from the F1 plants. 4 types of gametes are formed. अब ये तो क्या है, पेरेंट्स है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, दोनों पेरेंट्स से हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे. अब इनसे हमें F2 जनरेशन में किस टाइप के मतलब प्रोजेनी ऑब्टेन होगी. फॉर दिस वील यूज पुनेट स्केल. सो पुनेट स्केल कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड दिस F2 जनरेशन. ओके, एक पेरेंट के गैमेट्स हमने इस साइड राइट कर लिए टॉप रो में, दूसरे पेरेंट के गैमेट्स हमने क्या किए, साइड कॉलम में राइट किए. ठीक है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, मेल, और इसको हम फीमेल शो कर सकते हैं. ओके, देन व्हेन द क्रॉस मेड इज बिटवीन दिस, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y is formed. कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y is formed. In this way, कैपिटल R, कैपिटल Y is formed. कैपिटल R, कैपिटल Y is formed in this. Okay, when these gametes are fused, that time कैपिटल R, सॉरी इसमें क्या होगा, ये वाला गैमेट जब इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. जब इससे फ्यूज होगा तो कैपिटल R, स्मॉल y is formed. अब इससे होगा तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y is formed. अब जब इससे फ्यूजन होगा इसका तो कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y. तो इस तरह से 4 गैमेट्स क्या होंगे, एक दूसरे से फ्यूज होंगे. आफ्टर दैट, अब जहां पर कैपिटल R, कैपिटल Y है, वहां तो क्या होगा, राउंड येलो, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस. ओके, ये तो क्या होगा, राउंड येलो. ये भी क्या है, राउंड येलो. ये भी क्या है, राउंड येलो. ये भी कैसा होगा, राउंड येलो. ये कैसा होगा, राउंड येलो. ये क्या है, राउंड. अब यहाँ पे स्मॉल y है तो ये स्मॉल y किसके लिए आ गया, राउंड ग्रीन. ओके, इसमें भी क्या होगा, राउंड येलो. अब इसमें भी स्मॉल y है तो कैपिटल R, स्मॉल y से क्या आ जाएगा, राउंड ग्रीन. अब इसमें भी क्या है, राउंड येलो. इसमें भी क्या होगा, राउंड येलो. देखिए कैपिटल R और एक कैपिटल Y है. अब इसमें स्मॉल r और कैपिटल Y है. स्मॉल r किसके लिए है, रिंकल के लिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंकल येलो. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r, कैपिटल Y, रिंकल येलो. ओके, यहाँ पर कैपिटल R, कैपिटल Y, राउंड येलो. यहाँ पर कैपिटल R,
स्मॉल y राउंड ग्रीन, यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y दैट मीन्स रिंकल येलो, यहाँ पर रिंकल ग्रीन। ओके, तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिल रही है? देखो F1 हमारे पेरेंट्स तो क्या थे? राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं हमें वो कैसे मिल रहे हैं? रिंकल येलो भी मिल रहे हैं और राउंड ग्रीन भी मिल रहे हैं, यानी न्यू कॉम्बिनेशंस भी हमें मिल रहे हैं। ठीक है, राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो, ये क्या है? दोनों न्यू कॉम्बिनेशंस। यहां पर क्या हो रहा है? न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रही है। ओके, तो इस तरह से अगर हम इनका जो फिनोटाइप है, द फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन इज राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन, यानी 4 टाइप के फिनोटाइप्स हमें मिल रहे हैं और इनका जो रेशियो है वो क्या होगा? 9। ये राउंड येलो वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। राउंड येलो वाले कितने प्लांट्स मिल रहे हैं? 9। राउंड ग्रीन वाले 1 2 एंड 3। ये प्लांट्स कितने हैं? 3। ओके, उसके बाद रिंकल येलो 1 2 एंड 3। रिंकल येलो भी कितने हैं? 3। एंड रिंकल ग्रीन कितने हैं? ओनली 1। ओके, और अगर हम इनका जीनोटाइप देखें, इसका जो जीनोटाइप होगा F2 जनरेशन का वो क्या होगा? 1:2 2:4 1:2 1:2:1। ओके, इस तरह से टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं इससे उससे। ठीक है, जिसमें इससे क्या है? 4 टाइप के हमें क्या मिल रहे हैं? फिनोटाइप्स। और जीनोटाइप्स अगर हम देखें तो कितने टाइप के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जीनोटाइप्स हमें मिल रहे हैं। फिनोटाइप 4 टाइप के और जीनोटाइप 9 टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, Mendel proposed the law of independent assortment. Yes, I hope you understand inheritance of 2 genes. Okay, so law of independent assortment we will discuss in our next video. Okay, thank you, have a nice day.